Thank you, beta. Thank you, and same to you. Happy Gandhi Jayanti to all of you. Hmm. Wait, let me check network connection. Communication, correct. Let me rejoin again. Happy Gandhi Jayanti, Agrima. Thank you, beta. Same to you. इस बार rejoin करके देखती हूँ. Okay. Sai Ram, am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am, you are Yes, audible. ma'am. You are audible. Yes, ma'am. But you are not audible, beta. Problem is that I cannot hear your voice. I am audible, but you are not Hello, audible. hello, check. Ma'am. संदेश भी बोल रहा है, बट इसकी वॉइस मुझे सुनाई नहीं दे रही. लेट मी चेक बेटा. साउंड इंक्रीज है बेटा, 99 पर है. वेट. Hello, Sai Ram. Am I audible? Anyone of you give reply? Yes, ma'am. Saira, Yes, ma'am. ma'am. You are You are audible, ma'am. audible. But you are not Saira, ma'am. audible. What happened? Saira, ma'am.
क्या था, क्या था? हेलो साईराम। साईराम मैम। साईराम मैम। सॉल्ट सॉल्ट साईराम मैम। ओहो, साईराम मैम। साईराम साईराम बेटा, साईराम। चलो, नाउ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब सबको सुन सकती हूँ। गुड, चलो हो गई। नेटवर्क में ये तो प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ओके, नाउ इट्स ओके, ग्रेट। सो हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू बेटा। Thank you, ma'am. Okay beta, thank you, same to you. Thank you मैम। Now today what you have to do, you all have to clean your bags, mobile, laptop. Have you cleaned your shoe rack, your almirah, everything you have to clean? Done? Done. सब वाई लिख रहे हैं। अच्छा ओके, यस आप मैम। लोगों में से कितने लोगों ने क्लीन किया? राइट वाई। ओके, यू ऑल आर राइटिंग वाई। क्या बात है, वेरी गुड 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 गुड, सो नाइस ऑफ यू, वेरी गुड। चलो चलो, सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, सब वाई लिख रहे हैं, क्या बात। तो आज तो सबका मोबाइल बिल्कुल शाइन कर रहा होगा, है ना? चलो यस मैम। चलो चलो, गुड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट अबाउट योर होमवर्क? डन होमवर्क? यस मैम। अच्छा अच्छा, ओके, अगेन you write y or n regarding homework. If you have done y, if you have not done n, let me check how many of you are writing n. Okay, all are writing. अच्छा, one has written n. Arpita, next Agrima, next Ram, next अच्छा, मतलब अग्रिमा, ये अभिषेक ने वाई लिखा, आदित्य, और किसने लिखा? राम ने नो। क्या बात है, राम नो। अच्छा राम, अनम्यूट बेटा। यस मैम। वाई नो? मैम मैं पिछली क्लास में नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं थे? तो होमवर्क बेटा आप पूछ सकते हो ना कि क्या होमवर्क था। मोबाइल नंबर है आपके पास, आप किसी को कॉल करो, कॉल करके पूछो। एंड यू मैम हैव मेरा 5.1 क्वेश्चन 4 तक तो हो रहा है। अच्छा, अर्पिता, she has also written n. अर्पिता, unmute बेटा। Yes. Ma'am, I have not attended the class yesterday. Last time? Yes, ma'am. Why बेटा? Ma'am, the network was so slow and I can't attend the class. I have asked Soumya, but she doesn't reply anything. But you should have called your friend बेटा। Ma'am, I have called, but Soumya doesn't reply. अच्छा, मैम she asked for 17 date 17th। हाँ देखो, That's तुम्हारी why। friend। No, ma'am, I asked again. No बेटा, but you should have asked बेटा। It's your responsibility and it's your duty to complete homework. It's okay, no problem. But today you try to complete it, okay? Ma'am, from till 5.1 I have completed. The first exercise completed. How many questions are left? We have completed all the questions. Ma'am, 2. You have done only 2 questions. No, ma'am, 2 are left. Only 2 are left. Only 2 are left. Yes, ma'am. It's okay. 2 तो ठीक है. Today you try to complete those 2 Ma'am? questions. Yes, बेटा. मैम आज हम लोग को मैम इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस ये सब करना है। Yes, 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 yes. बिल्कुल। लक्ष्य तो लगता है बहुत सिंसियर हो गया इस समय, क्या बात। मतलब एडवांस में भी लक्ष्य देख के रखता कि आज क्या पढ़ना है। गुड बेटा, रिपीट अप। Okay, today we will discuss very important topic. It's very important. Same concept you will learn in 8th class, in 9th class, in 10th class.
ध्यान रखना है 7th क्लास में जस्ट इसका बेस है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। यदि आज आपको समझ में आ गया तो 100% आप 8th 9th 10th का आराम से कर लोगे। So it's very important concept. This concept is based on parallel lines and transversal. So first you should try to understand what is the meaning of parallel lines and transversal. What do you understand? Any one of you can explain what are parallel lines? Okay, explain. Ma'am, parallel lines means the two lines which do not whose interior angles sum is 180. Pardon? Repeat again. Not clear, beta. Repeat again. मैम ट्रेवल लाइन होती है मैम जिसका मैम The two lines अब इसको बोलने दो। whose interior angles sum is 180. Okay, but the lines that do not intersect is called parallel lines. yes, ये definition ये जो आपने बताया सौम्या, it is a property of parallel lines. It is actually not definition. Definition ये है आपके ये but controls. एक सेकंड हाँ, parallel lines means two जरूरी है lines. मैम या फिर समझना। yes बेटा, repeat again. क्या बोल रहे हो? पूछो। What happened? संदेश मैम कुछ नहीं। नहीं पूछ ले अब तो बोलेगा ही, बोल जल्दी। What do you want to ask? Repeat again. नो मैम कुछ नहीं। अब तो बोलेगा ना। अब L M N, हाँ ध्यान से देखो, L and M, these two are parallel lines. Parallel lines means simple सा concept आपने 6th class में किया है. If two lines or more than two lines, if two lines or more than two lines do not intersect each other, even if they extended up to infinity. Infinity means unlimited, कितना भी आप extend कर सकते हो. तो जब two lines या two से ज्यादा lines एक दूसरे को intersect नहीं करती, चाहे भले उनको infinity मतलब इस लाइन को डॉटेड डॉटेड आप जितना मर्जी आगे एक्सटेंड कर दो, इसको भी चाहे जितना एक्सटेंड कर दो, इस साइड भी कितना भी एक्सटेंड कर दो, इस साइड भी इतना एक्सटेंड कर दो, यदि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उस केस में इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस. अब देखो, अब ये जो बोला उसने सौम्या ने कि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होती है, एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी है. डेफिनेशन में आपको सिर्फ यही लिखना है, टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन इफ दे एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी आर नोन एज पैरेलल लाइंस. एक कॉन्सेप्ट और है, जो ये पैरेलल लाइंस होती है इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस स्ट्रेट आप 90 डिग्री का एंगल बनाओ, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी, मान लो ये है 4 सेंटीमीटर, दिस वन विल बी 4, दिस वन विल बी 4, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी ये एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए. ऐसा नहीं ये वाली डिस्टेंस नहीं ले सकते आप, ये डिस्टेंस ले लो, नो, ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि 90 डिग्री से लेस एंगल बन रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम. ये इसमें आप ऐड कर सकते हो. क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया इतना? Yes, ma'am. अब आपको देखो, डेफिनेशन तो आपने 6th क्लास में किया है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन पैरेलल लाइंस. तो डेफिनेशन यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6. In 7th class, what you have to do, you have to simply find different types of angles made by a transversal on two parallel lines or more than two parallel lines. यानी जो ट्रांसवर्सल डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनाता है, कहाँ पे बनाता है? पैरेलल लाइंस पे. वो आपको 7th क्लास में करना है. अब आप ध्यान देखो कैसे, मतलब तो सबसे पहले समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल पहले समझो, ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहते हैं जो गिवन लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. तो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स गिवन लाइंस at distinct points
यू हैव टू राइट, इसकी डेफिनेशन आपको सबको लिखना है। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन लिखोगे, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन लिखोगे। आप ट्रांसवर्सल सबको समझ आ गया? पहले इसको अपनी लैंग्वेज में, और डेफिनेशन हाँ देखो, लिसन 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 लिसन, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, सिर्फ आप समझो इसका मीनिंग। ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहते हैं जो लाइन गिवन लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती। आप लिखोगे कैसे? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट। अब देखो एन को देखो, एन यहाँ से आ रही है आ रही आ रही है, और उसने एल को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। फिर ये लाइन आते 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 इसने एम लाइन को बी पे इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब इस लाइन ने इन दोनों लाइंस को टू डिस्टिंक्ट ये होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है डिफरेंट, अलग अलग, ERENT, डिफरेंट। यानी वो लाइन जो पैरेलल लाइंस को, या किसी भी, जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइंस हो, आप ऐसे भी लाइन बना सकते हो। रुको मैं दूसरा फिगर बना रही हूँ। सपोज मैंने एक दो लाइन ऐसी बना दी, दिस वन इज L एंड दिस वन इज M। आर दीज टू लाइंस पैरेलल? नो मैम, ये इंटरसेक्ट होंगे ज्यादा। इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट यदि मान लो इन दोनों लाइंस को, कोई लाइन हमने ऐसी ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया पिंक कलर, अब इसको नेम मैंने N दे दिया। अब N जो है L को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और M को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो N इज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी इंटरसेक्ट कर सकती है, पैरेलल लाइंस को भी इंटरसेक्ट कर सकती है। टू लाइंस भी हो सकती है, टू से ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ L M हो सकता है कि मैं एक लाइन और ले लूं। इधर देखो, एक लाइन में ग्रीन कलर में ले लेती हूँ। चलो सपोज मैंने एक लाइन यहाँ और ले लिया, ये ले लिया मैंने यहाँ पे N, ये तीनों पैरेलल है। मान लो हमने 3 लाइंस ले लिया N, अब इसको A पर, इसको B पर, इसको C पर, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो भी ये ट्रांसवर्सल होगी। यानी उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं जो लाइन गिवन लाइंस को, लाइंस वर्ड यूज किया है मैंने, मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। अब ये नहीं कि एक लाइन ले ली, ये एक लाइन है और इसको हमने ट्रांसवर्सल बोल दिया, नो। ट्रांसवर्सल शुड इंटरसेक्ट एट लीस्ट 2 लाइंस, कम से कम 2 लाइन होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो फटाफट। यस मैम। ठीक है, तो ये मैम। अब इसके बाद अब आप जो सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल 5 मिनट्स के लिए अपना एक तो सब म्यूट कर लो, अपना जो दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है तो बिल्कुल फोकस करना। यदि आपने आज का कॉन्सेप्ट समझ लिया, वेरी इजीली यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, सो सिंपल एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली which I am going to explain just now. अब आप ध्यान से देखते जाना। अब ये जो फर्स्ट लाइन है दैट इज N, इसको अच्छा C को मैं रब कर देती हूँ। फिलहाल अभी आपके कोर्स में 2 ही है, पहले 2 ही बताती हूँ, बाद में फिर मैक्सिमम लाइन ले सकते हैं। फर्स्ट वी विल टेक ओनली 2 लाइन्स, नॉट मोर देन 2। यदि 2 का समझ में आ जाएगा तो आप कितनी भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये है ट्रांसवर्सल, ओके। Now, this N is intersecting line L at A, and on this point A, you will get total 4 angles. कैसे 4 angles? पहली बात एंगल्स ध्यान रखना। एंगल्स जो होते हैं, जो भी एंगल या एंगल जो भी कहें, an angle is formed by 2 rays और 2 line segments, 2 के बीच के गैप को एंगल कहते हैं। अब आप देखो, ध्यान से देखना, दिस वन फर्स्ट एंगल, इसको 1 दे दिया, इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 2। ये आपका बन रहा 3rd एंगल, इसको मैंने नेम दे दिया 3। फिर आपका बन रहा है यहाँ पे 4th एंगल, इसको नेम दे दिया मैंने 4। सबका कलर अलग कर देती हूँ, चलो इसको भी चेंज कर लेती हूँ कलर, वेट। इसको ले लेते हैं ये वाला कलर, दिस वन इज 2। तो 1 2 3 4। अब आगे ध्यान से देखते जाना, खूब अच्छे समझना बेटा। अब यहाँ पे भी मैं सेम कलर ले रही हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने 5,
फिर मैंने पिंक कलर ले लिया, ये एंगल हो गया हमारा 6, देन आई टेक ग्रीन वन, ये हो गया आपका 7, देन आई टेक व्हाइट वन, ये हो गया आपका 8। तो टोटल इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines but in this case I am taking parallel lines, तभी फिलहाल पैरेलल को ही समझा रही हूँ मैं। तो आप मैम जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है जब वो दो लाइन को इंटरसेक्ट करे तो उसमें एंगल बनता है क्या? खुद देख लो, अपने आप देख लो, बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही इंटरसेक्ट करेगी 100% फर्स्ट पॉइंट पे 4 एंगल्स बनेंगे और सेकंड पॉइंट पे भी 4 एंगल्स बनेंगे, अपने आप देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी देन यू विल गेट टोटल 8 एंगल्स। कितने एंगल्स मिलेंगे? 8। 4 angles on first point and 4 angles on second point. 4 plus 4 total 8 angles. पहले ये क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. अब आप देखो ध्यान से। यस मैम। यदि लाइंस पैरेलल है, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए, तो गिवन में मैंने यहाँ लिख दिया L, ये किसका साइन होता है? पैरेलल। आप जब दो लाइन हम ऐसे ऐसे कर देंगे स्लैंट वाइज, लाइन की हो जाएगी पैरेलल। L is parallel to M, it is given, and N is a transversal, लिख लेना, N is a transversal, TRANSVERSAL, लिख लेना, ट्रांसवर्सल। ये गिवन हो गया। अब आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेगा ध्यान से देखना। कितने टाइप्स के एंगल्स मिलता है? एक हमें मिलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, खूब अच्छे समझना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक आपको मिलेगा पेयर्स of CORRESPON। अच्छा रुको मैं इस साइड लिख लेती हूँ, अदरवाइज आपको प्लेस नहीं मिलेगा बेटा। वेट, लेट मी इरेज दिस वन। तो आपको कितने टाइप्स के एंगल्स मिलते हैं? एक तो मिलता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहले वर्ड सुन लो तब तक। एक मिलता है आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एक आपको वर्टिकली अपोजिट। आपको पहले से पता है कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको पूरा यहाँ लिख देते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फर्स्ट आपको पेयर्स का मतलब समझ में आ गया। पेयर्स का मतलब है कि दो एंगल्स मिला के एक पेयर बनाएंगे। अब इसकी मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको समझाने जा रही हूँ, खूब अच्छे समझना। तो फर्स्ट हेडिंग मैंने डाल दिया पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको कैसे पता चलेगा कि पेयर्स कौन कौन से बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के? नंबर A, अब आप ध्यान से देखना, ये इट इज ए ट्रांसवर्सल, दिख रहा है सबको ट्रांसवर्सल पिंक कलर, ठीक है? ये राइट हैंड साइड में, सिर्फ राइट हैंड साइड को देखना, लेफ्ट को नहीं देखना। अब मैं राइट हैंड साइड को शेड कर देती हूँ, ये पूरा इसका राइट हैंड साइड है, समझ आ गया? इस लाइन के ये पूरा शेड है, जो हमने लाइन लिया ट्रांसवर्सल, इसके राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में कौन कौन से एंगल्स देख रहे हैं? जल्दी नेम बताओ कोई भी एक। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8। हाँ, टोटल 4 एंगल्स दिख रहे हैं सबको। 1 है, 4 है, एंगल 5 है, एंगल 8। 4 एंगल्स आर देयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल। अब इन 4 एंगल्स को ये ट्रिक समझ जाओगे तो बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके भी, अच्छा इसके पहले एक चीज आपको और पहले बता दो, रुक जाओ। इसके भी पहले एक है इंटीरियर एंगल्स, इसको बाद में समझाती हूँ, रुक जाओ। इंटीरियर एंगल्स, पहले इंटीरियर एंगल्स देखो। इंटीरियर एंगल्स टोटल होते हैं 4 और पेयर्स में नहीं होती। अब इंटीरियर एंगल्स कैसे देखेंगे? ये जो लाइन आपको दिख रही है L और M, इस लाइन के अंदर की तरफ, इस लाइन के अंदर की तरफ, इस लाइन के अंदर की तरफ, इंटीरियर वर्ड से समझ में आ रहा है, जो अंदर हो, किसके इंटीरियर में हो? दोनों लाइंस के अंदर की तरफ हो। इन दोनों लाइंस के अंदर की तरफ कितने एंगल्स बन रहे हैं? जल्दी बताओ। एंगल 4।
एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। एंगल 5, एंगल 6। इस लाइन के अंदर की तरफ, यानी ये जो लाइन है इसके अंदर की तरफ 4 एंगल बन रहे, ये चारों इधर देखते जाना। रुको, इसको मैं काम करती हूँ, ये मैंने सर्कल बना दिया, ये बना दिया सर्कल, ये देखो ये 4। तो ये 4 एंगल्स कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो नंबर 1 यहाँ पे नेम लिख देती हूँ, एंगल 3, कॉमा एंगल 4, कॉमा एंगल 5, कॉमा एंगल 6। तो ये 4 एंगल हो गए। म्यूट करो बेटा, म्यूट करो, जल्दी म्यूट करो, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। नाउ कम टू सेकंड हेडिंग, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स भी 4 होते हैं, बस लाइन के आउटसाइड, बाहर की तरफ। अब लाइन के आउटसाइड क्लियर दिख रहा है, एंगल 1। अच्छा रुको, मैं कलर चेंज कर दूं, वेट। 1 2 7 8। यस बेटा, रुक जाओ। एंगल 1 हो गया आपका फर्स्ट, एंगल 1 फर्स्ट, इसके बाद एंगल 2, इसके बाद एंगल 7, एंगल 8। ये 4 नहीं। यस बेटा, मैम ग्रीन कलर नहीं दिख रहा। ओके, येलो कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो ये 1 2 3 4, ये 4 एक्सटीरियर और ये 4 इंटीरियर। नाउ थर्ड हम ले रहे हैं, चलिए येलो लेना। थर्ड वन इज पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये सब पेयर्स में मिलेंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की ट्रिक देखो, जो मैंने अभी समझाया। इस ट्रांसवर्सल की राइट साइड में जाओ, राइट साइड में आपको 4 एंगल दिख रहे हैं, 1 4 5 8। अब ट्रिक सुनना, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन में जो ये लाइन है, इसमें 4 में से लाइन के ऊपर वाला एंगल ले लेंगे, फर्स्ट लाइन के ऊपर वाला। ये ऊपर वाला लेंगे तो एक्सटीरियर है कि इंटीरियर, जल्दी बोलो। दिस वन इज एक्सटीरियर। पहली लाइन के ऊपर वाला, दूसरी लाइन के भी ऊपर वाला, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर। तो ऊपर वाले का एक्सटीरियर और नीचे वाले का इंटीरियर बन जाएगा फर्स्ट पेयर। तो फर्स्ट पेयर है एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 कॉमा एंगल 5, ये है फर्स्ट पेयर। पहली लाइन का एक्सटीरियर, दूसरी लाइन का इंटीरियर, और दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए। मैम योर स्क्रीन इज यस बेटा, नो मैम, स्क्रीन फ्रीज्ड मैम। अच्छा फ्रीज्ड, ओके रुको वेट। वो मैम नहीं हुई है मैम फ्रीज्ड। ओहो, तो तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ होगा बेटा, फालतू मैंने वो भी कर दिया। तो रीज्वाइन कर लो बेटा, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, इज स्क्रीन विजिबल? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes ma'am. तो एंगल 1 एंगल 5 फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर फिर सेम कॉन्सेप्ट, यानी जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर्स बनाएंगे, आपको क्या हिंट याद रखना? हाँ, आप पहले हिंट सुन लो। हिंट क्या बताया मैंने, फर्स्ट लाइन का एक्सटीरियर तो सेकंड लाइन का इंटीरियर, और दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होंगे। फिर फर्स्ट लाइन का क्या ले लो, इंटीरियर ले लो, 4 इंटीरियर में है। आप इंटीरियर समझ लो या लाइन के नीचे, आपके लिए दोनों सिंपल ट्रिक है। अब या तो लाइन के नीचे लेंगे तो ये भी लाइन के नीचे वाला लेंगे, लाइन के ऊपर वाला लेंगे तो लाइन के ऊपर वाला लेंगे, ऐसा समझ जाओ। लाइन के अबव, लाइन के अबव, लाइन के बिलो, लाइन के बिलो, और ट्रांसवर्सल के सेम। एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। बस आपकी मर्जी, आप कैसे समझते हो। मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दिया। फर्स्ट ट्रिक एक्सटीरियर इंटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर। सेकंड ट्रिक लाइन के जस्ट ऊपर फर्स्ट लाइन का तो लाइन के जस्ट ऊपर फर्स्ट लाइन का, सेकंड लाइन का। लाइन के जस्ट नीचे फर्स्ट लाइन का तो लाइन के जस्ट नीचे सेकंड लाइन का। जो समझना है दोनों करेक्ट है। तो सेकंड पेयर क्या बन जाएगा, एंगल 4 कॉमा एंगल 8। नाउ कम टू थर्ड पेयर। अब ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में आ जाओ। लेफ्ट साइड में 4 एंगल्स आपको दिख रहे हैं, 2 3 एंगल 6 एंगल 7। सेम कॉन्सेप्ट, लाइन के जस्ट ऊपर तो लाइन के जस्ट ऊपर, पिंक पिंक। तो थर्ड पेयर एंगल 2 कॉमा एंगल 6, और डी आ जाओ लाइन के जस्ट नीचे। वैसे सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो सेकंड वाला ज्यादा सिंपल है,
लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो 3 और 7 ग्रीन कलर वाले, एंगल 3, एंगल 7। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर देयर? कितने पेयर्स मिलते हैं? 4 पेयर्स। 4 तो आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस, वो दोनों लाइंस पैरेलल भी हो सकती है या सिंपल कोई भी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग भी चलेगी, देन यू विल गेट 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट 2 पेयर ट्रांसवर्सल के राइट साइड में मिलेंगे, नेक्स्ट 2 पेयर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना, जब पेयर बनाते हैं तो आपको क्या करना है, अपवर्ड, लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड। इसलिए मैंने कलर अलग अलग लिया था, व्हाइट व्हाइट एक पेयर, पिंक पिंक सेकंड पेयर, और ये वाला जो पिंक इसे वॉयलेट है, चलो पिंक 1 थर्ड पेयर, ग्रीन 1 फोर्थ पेयर। ये 4 पेयर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान से सुनना, यदि लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल होने पे क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, 100% इक्वल होंगे। मान लो एंगल 160 डिग्री का है तो एंगल 5 ऑटोमेटिक 60 का ही बनेगा। अभी मैं आपको एक बताऊंगी आपको घर में क्या करना। हम यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर में बीच में, आप देखो अब इक्वल्स टू का साइन लगा रही हूँ। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 आपको मिल जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 मिल जाएगा, एंगल 2 equals to angle 6, angle 3 equals to angle 7. Why these pair of angles are equal? These pairs of angles are equal because these two lines are parallel. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे उनके पेयर्स इक्वल एक ही केस में होगा जब लाइंस पैरेलल होंगे। मान लो एल एम पैरेलल नहीं होती तो आपको ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते तो, बट ये आपस में इक्वल नहीं होते। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे? व्हेन पैरेलल लाइन होगी। When the lines When- are parallel. जब लाइंस Lines are parallel. तभी ये एंगल्स इक्वल होंगे, बस ये ध्यान रखना। यदि ये लाइंस पैरेलल नहीं होगी तो आप लिखोगे एंगल 1 कॉमा एंगल 5 एंगल 4 कॉमा, इसलिए मैंने पहले आपको कॉमा लगा के दिखाया फिर मैंने इक्वल कर दिया। ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वन, वो है पेयर्स। देखते जाना मैं क्या लिख रही हूँ, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट, ALTERNAT। यस बेटा। मैम लेकिन जैसे आपने Yes. बताया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो मैम इसमें कोई सा एक कॉन्सेप्ट होता है एफ, तो मैम एफ के जो ऊपर होता है तो मैम वो एंगल 1 और अपने आप मतलब वो एफ का कॉन्सेप्ट होता है, जेड का कॉन्सेप्ट होता है और एक्स का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो मैम उसका क्या करना है इसमें? वो तो बेटा समझाने के लिए होता है, अदरवाइज कोई एफ एक्स जेड के कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है। आपको आपकी अपनी अपनी ट्रिक है कि आप कैसे समझते हो। वैसे मेरे हिसाब से सबसे सिंपल ये है कि लाइन के जस्ट ऊपर ले लो, लाइन के जस्ट ऊपर ले लो, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, लाइन के जस्ट नीचे, लाइन के जस्ट नीचे, ट्रांसवर्सल के, तो ये है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट को क्रॉस में लेते हैं, बताती रुक जाओ, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट, इसको पूरा लिख लेना दो हेड में, इंटीरियर आगे लिख लेना आप लोग। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं इसको रब कर दूं पहले, अदरवाइज हमें स्पेस नहीं मिल रहा। हैव यू नोटेड डाउन दीज इंटीरियर एंगल्स? सबने नोट कर Yes. लिया? खींचू यार। ये आपको सबको लिखना Yes, है। ma'am. Written. Yes, ma'am. If you have written, so let me rub it first. Okay, now this one erased. हाँ, so next हमें करना है pairs of alternate interior angles. एक सेकंड बेटा। alternate select हो, इंटीरियर लिख लेना, इंटीरियर एंगल्स। अब इसके कितने पेयर्स बनते हैं ध्यान से देखना, इसमें आपको सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। बहुत सिंपल ट्रिक है। जो आपके इंटीरियर एंगल्स थे, कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स थे, कोई एक बताओ, सार्थक
अनम्यूट, बाकी कोई नहीं बताना। 3 6 4 5 सार्थक, ओनली सार्थक विल टेल। सार्थक, आर यू प्रेजेंट? क्वेश्चन पूछते ही ये सर्कल वाले, ये इंटीरियर एंगल मैंने सर्कल बना के दिखाया था, ये सर्कल, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये चारों इंटीरियर है। जब ऑल्टरनेट की बात आएगी, आपको इन इंटीरियर एंगल्स को क्रॉस में एक्स के शेप में ले लेना, क्रॉस। एंगल 4, ये एक्स ऐसी होता है ना ये, तो 4 के साथ 6 का पेयर बनेगा और 3 के साथ 5 का पेयर बनेगा। यानी फर्स्ट पेयर यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो इसका फर्स्ट पेयर हो जाएगा एंगल 4 कॉमा एंगल 6, ये फर्स्ट पेयर हो गया, इसको मैं ए कर देती हूँ। इसका सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल 3 कॉमा एंगल 5। क्लियर हो गया? कैसे देखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर, जल्दी बोलो। यस मैम। आप इंटीरियर एंगल्स को क्रॉस में लेना, ये देखो मैंने ये क्रॉस बना दिया, एक्स का साइन बना दिया, एक्स। ये मैम पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर आएगा क्या? आप अभी आगे पहले इसको बता लेने दी। यस, आप ध्यान से सुनना फिर से। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, यदि ये पैरेलल होंगी तो ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। अब ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर मैं देखो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, किसका साइन लगा दिया? इक्वल्स टू। हाँ, तो कब इक्वल होंगे? कब इक्वल होंगे? व्हेन जब लाइंस पैरेलल। yes. Now last one here। हाँ बेटा, मैम इक्वल्स टू ना लेके मैम कॉमा ही लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल प्रॉब्लम है हाँ? ये, 100% प्रॉब्लम है। आपको कंफर्म, यदि, हाँ पर एक चीज सुन लेना ध्यान, यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं राइट पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तब तो आप कॉमा लिख दोगे, 100% चलेगा। बट यदि कोई प्रॉपर्टी पूछती है या कुछ यूज होता है कुछ, तब आपको इक्वल्स टू लगाना। बट यदि सिंपल सा पेयर्स लिखने को आता है तो आप कॉमा लगा के पेयर्स लिख सकते हो। बट आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि यदि लाइंस पैरेलल हैं देन दीज पेयर्स विल बी इक्वल। समझ में आ गया? जल्दी बोलो। यस मैम। लास्ट है पेयर्स। मैम लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो मैम नहीं लिखेंगे ना कॉमा? नहीं, तब तो इक्वल होंगे ही नहीं, बस पेयर में मिलेंगे बट दे आर नॉट इक्वल इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल। नाउ लास्ट वन इज पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट, लिख लेना यहाँ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में एक्सटीरियर एंगल्स को क्रॉस में ले लेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1 और एंगल 7। यस, एंगल 1 कॉमा एंगल 7। देखो 1 के क्रॉस में सामने देखो क्या, 1 के सामने कर्सर देखते जाओ, 7 और 2 के सामने 8, तो ये हो गया ए और बी हो जाएगा एंगल 2 एंगल 8। फिर वही इफ लाइंस आर पैरेलल, आप क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इतना पहले जल्दी बोलो, इतना सबको समझ में आ गया जो मैंने अभी तक बताया? यस मैम। ओके, नाउ कम टू लास्ट प्रॉपर्टी। ये अब इसके बाद में आपको लास्ट बता रही हूँ। अब जो भी मैंने आपको लिखाया है आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना और इसके नोट्स बनाना। आप पूरा जैसे मैंने अभी लिखा ना ऐसे पेयर्स बना बना के आप पूरा लिखोगे। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज सिक्स्थ वन। रुको बेटा, लेट मी चेंज इट्स कलर। मैं ले लेती हूँ डार्क ग्रीन नहीं दिखता ना आप लोगों को? यस मैम, आप तो मैम येलो ही ले लीजिए। येलो ले लो, चल ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन इज, ध्यान से सुनना, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल में आ जाओ। ट्रांसवर्सल के सेम साइड, वर्ड सुनना, ट्रांसवर्सल के सेम साइड टू इंटीरियर एंगल्स देखना है आपको। इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड दो इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 एंगल 8। एंगल 4 एंगल 8। यस, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। पहली बात ध्यान से सुनना। फिर दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ कौन से दो इंटीरियर हैं? एंगल 3, इनका सम होगा 180 डिग्री। ये है, आपको इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ लिखोगे को इंटीरियर, वर्ड ध्यान से सुनना। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री का मीनिंग मैंने समझाया था, याद है सप्लीमेंट्री? The sum of two angles are Is 90 degree. 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है। तो अब आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, सिंपल लैंग्वेज में। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये तभी होगा 180 जब लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज ये 180 डिग्री सम नहीं मिलेगा। तो यदि दो लाइंस पैरेलल है तो दो इंटीरियर एंगल्स का सम, वो दोनों इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए। ध्यान रखना, 4 के साथ 6 नहीं ले सकते, 4 के साथ 5 ही लेंगे। तो 4 + 5 मिल जाएगा आपको 180 और 3 + 6 आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। और जब हम दो इंटीरियर एंगल्स को लेते हैं सेम साइड में, उसके लिए वर्ड आता है को इंटीरियर एंगल्स। और चूंकि इन को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, इसलिए इसको लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये 6th हो गया। नाउ कम टू 7th। सेम एक्सटीरियर के लिए भी है, एंगल 1 + एंगल 8। अब इसका कलर तो चेंज करेंगे ताकि अलग से दिख जाए। एंगल 1 + एंगल 8, दो एक्सटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड, इनका सम 180। फिर एंगल 2 + एंगल 7, इनका सम 180। ये पहले बताओ, ये एक्सटीरियर एंगल होंगे ना ये तो? हाँ, इसको एक्सटीरियर जनरली वर्ड यूज नहीं, इसके लिए पूरा सेंटेंस लिख। वैसे यहाँ भी आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। देखो इसके लिए क्या सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंस पहले ध्यान, ये सेंटेंस करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, बट इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो, सम ऑफ। अच्छा आप खुद सोचो, मैंने किसका सम किया? अपने आप से सेंटेंस फ्रेम करना सीखो। मैंने किसका सम लिया? एंगल 4 एंगल 5। 4 5 थोड़ी कि फिक्स 4 ही होता है। माय वॉइस is not clear? Ma'am, your voice is very good. मैम इंटीरियर एंगल्स, Interior angles on the same side of transversal. So you can write sum क्योंकि प्लस है, sum of two interior angles on the same side of transversal is 180 degree. 6th प्रॉपर्टी हो गई। 7th प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? sum of, क्योंकि प्लस है, टू एक्सटीरियर एंगल्स, ये 1 और 8 एक्सटीरियर है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो टोटल हाउ मेनी, लेकिन ध्यान रखना, फिर से बता रही हूँ, ये इक्वल होगा जब लाइंस पैरेलल होंगी। ये 180 डिग्री सम तभी आएगा इफ लाइंस आर पैरेलल। यदि लाइंस पैरेलल नहीं है तो ना तो आपको 6th प्रॉपर्टी मिलेगी, ना आपको 7th प्रॉपर्टी मिलेगी। मैंने क्रॉस लगा दिया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको मिलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर मिलेगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मिलेगा, बट इक्वल नहीं होंगे। और यदि लाइंस पैरेलल नहीं तो 6th और 7th तो मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अब ये सबको क्लियर हो गया? जल्दी बोलो फटाफट। Yes, ma'am. नाउ कम टू एक्सरसाइज। ध्यान से सुनो, अब आपको एक्सरसाइज सुनो 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 सुनो। नाउ कम टू फर्स्ट, रुको लेट मी zoom it। हाँ ये देखो ध्यान से सुनो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर, आपका 10 मिनट चलो एक्स्ट्रा हो गया, बट थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन भी किया था नेटवर्क के कारण। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन यू हैव, हाँ सेकंड वन यू हैव टू सॉल्व। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, आप सेकंड क्वेश्चन करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, म्यूट 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 बेटा। फर्स्ट में देखो, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंगल सॉरी ए इज पैरेलल टू बी, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। कौन सी प्रॉपर्टी है जल्दी बताओ? 1 और 5 इक्वल होंगे। Corresponding. बस बस Corresponding. ये यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आप कर लेना, सेकंड भी कर लेना। नाउ कम टू थर्ड। थर्ड में ध्यान से देखना, इन द एडजॉइनिंग फिगर P is parallel to Q, find the unknown angles। अब उसका फिगर कहाँ गया? ये है, ध्यान, हाँ ये सुनो, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब आपको अननोन एंगल्स फाइंड करना, एक एंगल गिवन है। अब मैं आपको फटाफट 1 सेकंड में हिंट दे देती हूँ बस। ये 125 है, वर्टिकली इक्वल होता है हमेशा। तो वर्टिकली मालूम है ना, क्रॉस में बनते हैं, बताया था क्रॉस। यस मैम, यस मैम। तो ये भी 125 हो जाएगा। अब आगे सुनना, अब आप इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ले लो। 125 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा?
इसका करस्पॉन्डिंग होगा डी, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर। याद है ट्रिक? ट्रिक याद है? मैम हम लोग, यस मैम मैम, लेकिन हम लोग को थोड़ी सी बुक टिल्ट करके हल्का सा देखना पड़ेगा, हल्का सा। हाँ सुन बेटा, जब खाना भी खाते हैं ना तो थाली से थोड़ा सा हाथ को ऊपर ले जाके फिर खा पाते हैं, करते नहीं करते? ऐसा तो होता नहीं कि खाना सामने आया और ऑटोमेटिक पेट में चला गया, नहीं होता ना? थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर तो डी भी हो जाएगा 125। अब आप इसका करस्पॉन्डिंग देख लो लाइन के नीचे। तो लाइन के नीचे कौन सा एंगल बन रहा है ट्रांसवर्सल के सेम साइड? करस्पॉन्डिंग चेक करो पहले जल्दी। लाइन के नीचे ये बन रहा 125, तो बी 125 हो गया, डी 125 हो गया, ये वाला 125 हो गया। अब आप देखना इसका ऑल्टरनेट ले लो। चलो इसका ऑल्टरनेट छोड़ो। अब आप एक काम कर सकते, लीनियर पेयर सबको मालूम है, जल्दी बोलो लीनियर पेयर। दो एंगल का सम कितना होता है लीनियर पेयर में? 180 डिग्री। ये मैं यहाँ कुछ लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। 125 प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, इन दोनों का सम 180 होगा, करेक्ट है? यस मैम। यस मैम। ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ई कैसे निकालेंगे? 125 180 से माइनस हो जाएगा, तो ई कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। 55 तो आ गया 55, ये हो गया 55। अब जब ये 55 हो गया, ग्रीन ले लेती हूँ, ये हो गया हमारा 55। अब इस ई का करस्पॉन्डिंग देख लो, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर ए भी कितना हो गया? 55। ई का वर्टिकली, ई का वर्टिकली कौन सा है? वर्टिकली, ई का वर्टिकली एफ एफ एफ, एफ भी हो गया 55। ए का वर्टिकली सी सी, यस सी 55। तो कुल मिला के 8 एंगल, 8 एंगल जो मिलेंगे, 8 एंगल्स। 8 में से हर क्वेश्चन में 4 एंगल्स एक जैसे होंगे और नेक्स्ट 4 एक जैसे होंगे। अब आप देख लो 4 एंगल 125 के हैं और 4 एंगल 55 के हैं, 1 2 3 4। तो 8 में से 4 एंगल 55 के मिलेंगे, 4 125 के। ये हर क्वेश्चन में होगा। तो कुल मिला के आप इस क्वेश्चन को 2 प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है वर्टिकली, एक प्रॉपर्टी मैंने यूज कर लिया करस्पॉन्डिंग, और एक प्रॉपर्टी मैंने यूज कर लिया लीनियर पेयर। ये जरूरी नहीं कि इसके 2-3 मेथड है, बट मैंने आपको एक मेथड समझा दिया। आप इन तीनों प्रॉपर्टीज का यूज करके 8 एंगल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कैसे निकाला? यस मैम। तो यू कैन डू। तो आज का होमवर्क बस सिर्फ 3 तक है, दिस होमवर्क बस खत्म। चलो ओके, लीव बेटा 1 by 1, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। लीव 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 फास्ट। अच्छा 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, अभी आपकी अटेंडेंस नहीं हुई, वेट करो, वेट 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 वेट, अटेंडेंस नहीं हुई अभी आपकी। चलो ठीक है, हो गए, लेफ्ट हो गए। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं ले लूंगी, उसका टेंशन मत लो। बट चलो लीव करो बेटा 1 by 1। सायरा मैम। सायरा मैम।